हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो गया है या फिर आप सोच रहे हो कि आपका सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, लेट मी टेल यू, सीएमए इंटरमीडिएट में आपका ग्रुप वन में एक पेपर है, पेपर नंबर 7 डीटी एंड आईडीटी। वो सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा बड़ा पेपर है, विच विल कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम फॉर प्रिपरेशन। इफ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर डिसंबर 26 एग्जामिनेशंस, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कंप्लीट रोड मैप वीडियो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वेर आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कब कब किस किस सीक्वेंस में चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड आई हैव टेकन द मोस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना, कंजर्वेटिव अप्रोच की। आपका बैच जो है, अगर आप क्लासेस ले रहे हो, कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हो, लगभग आपका बैच इस डेट तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इफ यू गिव मोर टाइम, if you speed up, if you try to wrap up the topics fast, you can definitely complete the topics even before the due date, which I'll be going to share with you. Let me tell you, you are studying not one paper, you are studying two papers together, that is direct tax and indirect tax. In final, intermediate DT IDT comprises of two papers, final DT 100 marks, final DT IDT 100 marks. In intermediate, without any much reduction in the syllabus, they are giving you everything in one paper. So definitely huge effort is there, huge efforts are there, but the output is only 100 marks. So you have to understand that there are lots of efforts which needs to be given in this paper and lots of time to be given in this paper. Consider this paper as to be 1.8 times at least of the one paper which you will give, like accounts, cost or law. In DTI DT you have two papers, so you have to accordingly distribute your time. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर नंबर 7 डीटी आईडीटी का अगर अपने बात करते हैं, अभी अपने बात करें दिसंबर 26 के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्लीज अटेम्प्ट ग्रुप 1 इन दिसंबर 26 ओनली एंड ओनली इफ यू आर वेरी सीरियस। इफ यू आर नॉट सीरियस, इफ यू आर जस्ट थिंकिंग दैट ओके आई जस्ट फॉर द नेम सेक आई विल जस्ट गिव द एग्जामिनेशन, आई एम नॉट सीरियस, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज डू नॉट से झूठ, प्लीज डू नॉट लाई टू योर सेल्फ। Better to give June 27 and both group. Prepare group 1 now. As per the new IT Act 25, please make sure that December 26 का जो भी आप बैच लेंगे, that is only for old act. For Income Tax Act 2025, there will be a new batch for June 27. And I am going to start Income Tax Act 25 proper new batch on 24th of August. तब से हम Income Tax Act 25 start करेंगे। अभी if you are giving December 26 and you are very sure you will be given examination under old syllabus, I mean under the old act, that is Income Tax Act 1961. So let's get started. First of all guys, you need to know the complete syllabus of DT and IDT. CMA Intermediate DT IDT Finance Act 25 is going to be the updated Finance Act for your examination, and this is the syllabus. If you see the direct tax syllabus, approximately there are 10 chapters which I have categorized into. Number 1, basics of income tax, residential status, exemptions and agricultural income. Basically income का जो basics होता है, residential status, then exemptions, this is first chapter. ठीक है, this is purely practical. Okay, residential status, exemption, salaries, house property, capital gain, other sources and PGPP. This represents the lifeline, the blood of the Income Tax Act, that is 5 heads of income. Income is divided into 5 heads: salaries, HP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड पीजीपीपी। तो ये 5 हेड्स आपका मेन है, और यहां से आपको हर में 7 मार्क्स का यू विल गेट द क्वेश्चन। तो 7 मार्क्स इंटू 5, 35 मार्क्स। रेसिडेंशियल स्टेटस 7 मार्क्स, आपको शॉर्ट यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इफ यू आर हैविंग एनी लॉसेस, हाउ विल यू ट्रीट दैट लॉसेस इन द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। योर माइनर चाइल्ड इज अर्निंग इनकम, योर वाइफ इज अर्निंग इनकम, योर सन्स वाइफ इज अर्निंग इनकम, योर वाइफ इज अर्निंग इनकम, हाउ दैट इनकम माइट बी क्लब्ड इन योर हैंड्स। तो यहां से भी एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 से डिडक्शंस जनरली दे टेस्ट विद द टोटल इनकम वाला, दैट इज टोटल इनकम, मतलब सब कुछ मिला के क्वेश्चन आएगा। ये सब अपने गाइस वी विल अंडरस्टैंड इन दी मेन चैप्टर्स व्हेन वी स्टार्ट। TDS and TCS and advance tax, यानी on what all incomes tax is required to be deducted, how you pay your advance tax, ये सब कुछ जो है your examination में there are weightage. Then आता है your ITRs, returns are filed every year. Whenever you are earning income, you are paying any tax, you have to file your return. You have to apply for a PAN number. In income tax, a registration is given to you which is considered to be your PAN number, that is permanent account number. Last में आता है total income. So total income से भी you will be expecting one question, यानी कि अगर मैं deductions हटाऊं it will be better. Total income से you can expect one question, that is this question definitely जो है it comes from total income.
ठीक है. सो 5 heads of income you are getting 5 questions, residential status you are getting 1 question, total income you are getting 1 question, and losses and set off and carry forward of losses you are getting 1 questions. Almost this is your full fledged distribution of marks in direct tax. Now definitely this is very huge, this is very big. You need to give lot of effort and time in preparing all these things. We'll definitely guide you on this. Then आता है आपका IDT. This is the next 50% marks. Basics of IDT and constitutional amendments, that is GST. You have GST as well as customs in your syllabus. आपको GST भी complete करना है और आपको customs भी syllabus में complete करना है. You have GST, basics of IDT and constitutional amendments. Then you have charge of GST. GST किस चीज पे लगता है? There is a way of paying tax in GST that is known as composite tax. How do you calculate? GST is in GST the taxable event, the charging base is supply. What do you mean by supply? When do you want to or when do you liable to pay tax, that is time of supply, and on what value you are liable to pay tax, that is value of supply. Where you are required to deposit your tax, that is place of supply. What are the exemptions in which GST is not applicable, yani GST is exempted from few goods and services. How will you take registration in GST? Like in income tax there is PAN number, in GST there is GST number. Like GST there's a concept of input tax credit. GST yani taxes which is charged and collected from me, I will be claiming that as a credit, like input tax credit. I will be issuing bills, invoices in GST. I'll be also issuing way bills for transportation of goods. I'll be filing GST returns. I'll be paying GST taxes, so returns and payment. And lastly, I'll be following some customs rules. When I'm importing some goods into India, I have to value that goods. I have to calculate the duty and वगैरह वगैरह ये. तो you don't, मतलब इतना बड़ा syllabus है, but when you see the paper quality, when you see the paper trend, when you see the paper, it is quite manageable. So I know paper is lengthy, but the question comes very, very manageable. Trust me. And if you follow my guidance, we are having a guided batch. If you follow the guidance, trust me, things will fall into place. You just need to follow the correct path. You need to make some smart move. You need to make some smart strategy, which I am helping you in this particular video. Definitely you are going to crack your exams. तो ये आपका पूरा चैप्टर है, bifurcation. DT अलग, IDT अलग. Now you must be thinking, sir, in 100 marks so many chapters. Yes, that's the sad part of the story. Now do not get disturbed by seeing the start dates and end dates. ओके, दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कि मैं बहुत कंजर्वेटिव होके चला हूं कि भाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना से लेट तो तुम कुछ कर ही नहीं सकता, बट तुमको करना नहीं है. यू हैव टू ब्रिंग दिस डेट टू 10th अक्टूबर टू 15th अक्टूबर. ठीक है, आपको 10 से 15 अक्टूबर, यानी कि यू हैव टू बी 15 days फास्ट, यू हैव टू बी 2 weeks फास्ट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. That is absolutely possible. If you want to be 2 weeks fast, you will definitely have to employ more time per day towards tax. And if you're giving only group 1, that is possible. That is definitely possible. Cost is not required to be done every day. Accounts is not required to be done every day. Tax is required to be done every day. So you can plan that tax cost accounts or tax cost law you have to study daily. Tax will be half of your time. Cost and law or cost or accounts, whatever you're studying, that has to be half of the time. You have to give justice towards group 1. If you do this, trust me, everything will fall into place. A time will come when cost or accounts, any one of your subject will be over, but tax will never be over. And after that, you will be studying the law. उसके बाद आप law पढ़ सकते हैं. तो देखो, I have plotted these dates. This is actually based on the number of classes, and I have without a second thought, even 1 hour of class I am giving one day. But that is not the actual story. You have to study at least 3 to 4 hours, guys. If you don't study 3 to 4 hours daily in taxation for classes, it is going to be very difficult. आपको 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा टैक्स में, वरना आप टैक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइमली. So basic exemptions, the first, you have to complete the classes by this date. I am also giving you revision, and this revision I'll be doing with you. Do not worry. And then I'll be taking you a mock test for this chapters, which this full unit, basics of income tax, salaries, HP, मैं आपका पूरा mock test लेने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टेक योर फुल मॉक टेस्ट. आपका पूरा मॉक टेस्ट होगा, इस बेसिस पे आपका स्टडी किया जाएगा. उसके बाद अपने ये 2 सेगमेंट कवर करेंगे, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, पीजीबीपी. दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सेगमेंट इन योर एंटायर डीटी जर्नी. ये आपको मैंने टाइम दिया टू बी कंप्लीट टिल 18th अगस्त. 2 day यू विल टेक फॉर रिविजन. आपका सब कुछ चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है, ये भी आप समझो. अब कोई स्टूडेंट सोचेगा यार अपने को क्या रिवीजन करना है, नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द
बेनिफिट यू विल गेन दैट बिफोर फिनिशिंग योर सिलेबस आपके माइंड में सब कुछ रहेगा। मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ योर पैकेज एंड यू शुड डेफिनेटली डू दिस। ये मॉक टेस्ट अपने ड्राइव पे अपलोडेड रहेगा, आपको बस डाउनलोड करके पेपर सॉल्व करना और इवैल्यूएट करना है विद द सजेस्टेड आंसर व्हिच विल बी गिवन टू यू। क्लबिंग ऑफ इनकम डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से यू विल बी फिनिशिंग बाय दिस टाइम एंड उस डेट तक आपको सारा मॉक टेस्ट रिवीजन खत्म कर लेना है। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव टू कंप्लीट टोटल इनकम, ये सब कुछ आपको 18 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने आपको एकदम एग्रेसिव टारगेट नहीं, बहुत लूज टारगेट दिया है, आपको उसको एग्रेसिव बनाना है। आप प्लीज इसको ट्राई करिए कि मुझे 10 से 12 सितंबर तक मैं कैसे भी करके फिनिश कर लूं सो दैट आई मूव टू आईडीटी। अब आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सर शुड आई कंप्लीट आईडीटी फर्स्ट बिकॉज आईडीटी विल टेक लेस नंबर ऑफ टाइम। डीटी में मोटा मोटी आप समझ लो आप लगभग 2 मंथ्स तो मिनिमम लोगे, 2 से 2.5 मंथ्स आप मिनिमम ले रहे हो, बट आईडीटी में आप मैक्सिमम 1.5 मंथ्स ले रहे हैं। 2.5 and 1.5 you can understand the difference। जबकि IDT में if you want you can attempt full 60 marks। क्या आपको पता है IDT 60 मार्क्स का आता है? yes 14 into 3 तीन क्वेश्चन आईडीटी का रहेगा 14 नंबर का 42 मार्क्स, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, प्लस आपका 18 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। 60 मार्क्स आप आसानी से आईडीटी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप सब कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हो। आपको खाली क्या करना होगा, 12 मार्क्स का एमसीक्यू डीटी में अटेम्प्ट करना पड़ेगा और आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा सो दैट आपका गैप फिल हो जाए, यानी कि 28 मार्क्स का आप डीटी अटेम्प्ट करेंगे। तो 12 प्लस 28 कितना हो गया, 40 मार्क्स का डीटी हो गया, 60 मार्क्स का आईडीटी हो गया। कमिंग बैक टू आईडीटी, ये सारे चैप्टर्स है, तो ये 4-5 के ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं जो आपके लिए इजी होगा और इसी कंटिन्यूएशन में आपको क्लासेस भी दिए गए हैं। 21 सितंबर 23 सितंबर आपको मॉक टेस्ट करना है। ये सारे डेट्स बेटा जो है ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, आपको बस वीडियो में कमेंट करना है प्लानर और आपको सब कुछ मतलब आप ऑलरेडी देख के चुके हो, तो ये बस आपको देखना है कि हाँ इस तरीके से ये जो भी पीडीएफ है ना आपको मेरे क्लास अपलोड्स में मिल जाएंगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ये सब मैं दे दूंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या है सर, एक्सपेक्टेड तो देखो यहाँ पे अगर तुम मैंने देखा है तो हम 31 अक्टूबर तक प्लॉट जरूर किया है, बट इतना टाइम आपको लेना नहीं है, आपको टाइम कम लेना है। आप इसको किसी भी तरह से टारगेट करो, आपको किसी भी तरह से टारगेट करो कि आपको 10 से 15 अक्टूबर तक इसको किसी भी तरह से फिनिश करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपको 1.5 मंथ्स तो रिवीजन के लिए चाहिए। अगर आप 1.5 मंथ्स रिवीजन के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब देयर विल बी डिफिकल्टी इन टैक्सेशन। आपको टैक्सेशन में लिखना, क्योंकि डेफिनेटली देखो ये जो मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है इसमें रिवीजन को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, इसमें मॉक टेस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा यू विल बी एबल टू डू अ गुड रिवीजन, मतलब गुड रिवीजन कंप्लीट किया हुआ है और मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम एक बार और रिवीजन करना और एग्जाम के पहले एक बार और रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना आपके लिए थरो है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जब मैं जो रिवीजन आपको बोल रहा हूं ये सब कुछ आपके लिए चलता रहेगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। 15 एमसीक्यूज आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रहेगा विच इज गोइंग टू बी कंपलसरी, जिसमें से 6 मार्क्स डीटी के 6 क्वेश्चंस डीटी करेंगे यानी 12 मार्क्स डीटी करेंगे और 18 मार्क्स आपका जीएसटी कस्टम्स में से रहेगा। क्वेश्चन 2A रेसिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन 2B सैलरीज, ये 2 पार्ट आपका 7 मार्क्स का रहेगा। 3A हाउस प्रॉपर्टी से रहेगा, 3B पीजीबीपी से रहेगा, 4A कैपिटल गेन से रहेगा, 4B अदर सोर्सेस से रहेगा, 5A सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस से रहेगा, 5B टोटल इनकम से रहेगा, 6A 6B 7A 7B। दिस इज द बेस्ट पार्ट, लाइक डीटी एंड आईडीटी इंस्टीट्यूट मर्ज नहीं करता है, डीटी पूरा अलग है, आईडीटी पूरा अलग है। लास्ट 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम स्ट्रेट अवे आईडीटी। बेसिक्स ऑफ आईडीटी इज सच अ सिंपल टॉपिक, यहां से 14 मार्क्स आता है which is a blessing in disguise. Now in this situation they can ask anything in question number 7A 7B and 8A। ये लोग इस 3 में से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन 8B जो 7 मार्क्स का रहता है वो एक ही क्वेश्चन होता है कस्टम्स का और कोई क्वेश्चन नहीं होता है इन डिस्क्रिप्टिव। 6A आई मीन 7A 7B 8A इन 3 में से लोग कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है कि 8A दे आस्क फ्रॉम रिटर्न्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन रिटर्न से आता है, फॉर थ्योरी क्वेश्चन आता है। 7A 7B कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर, बट पॉसिबल जो चैप्टर्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, या तो चार्ज ऑफ जीएसटी आएगा, या तो एग्जाम्पशंस आएगा, तो कॉम्पोजिशन आएगा। तो भाई हमने पहले जब पेपर स्टार्ट करेंगे, ये जो मैंने आपको पेपर पैटर्न दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा शेड्यूल दिया कि आपको इसी शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस देखनी है। तो चार्ज हो गया, एग्जाम्पशंस हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वैल्यू सप्लाई हो गया, ये सारी क्लासेस आपको फटाफट पहले कंप्लीट करनी है, बिकॉज यहां से पॉसिबिलिटी हाई है कि एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे सर। देखो अल्टीमेटली मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, अगर आप मुझे अपना टाइम देंगे और मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी
थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, यू कैन आस्क योर सीनियर्स। अगर तभी आए हो यहाँ पर, तभी जाके आपका भी मार्क्स अच्छा आएगा, वरना मार्क्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सर क्लासेस हमें कैसे देखना है? आपके लिए टैक्स सब्जेक्ट पूरा नया है। इनिशियली ना आपको डिफिकल्टी फील हो सकता है कि सर क्या जो समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट क्या है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डनफुल लग रहा है। रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, कूल काम रिलैक्स, दैट्स वेरी नॉर्मल विथ ऑल दी स्टूडेंट्स। आपके लिए अलग से नहीं हो रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको डेफिनेटली लगता होगा कि यार हम कैसे करेंगे, कैसे कवर करेंगे, नॉर्मल है। जस्ट हैव पेशेंस, गिव टाइम, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। क्लासेस आपको बिल्कुल वॉच करना है रेगुलरली और अटेंटिवली। जब भी क्लास देखने बैठेंगे बीच में उठना नहीं है, बीच में कहीं डाइवर्जन नहीं लेना है, ब्रेक्स नहीं लेना है, एक बार में एक पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड एनी टॉपिक, अंडरस्टैंड कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी कंप्लीटली। एनी वन लेक्चर को पूरा एक बार में सिटिंग करे, कोई ब्रेक्स आपको लेना नहीं है। प्लीज फास्ट मत करना अनलेस एंड अनटिल आपका रीजनेबल हाई लेवल ऑफ, एक होता है ना ग्रास्पिंग पावर है, सारे बच्चों का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली फ्रॉम माय स्पीड, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मत करिएगा अगर आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो। फिक्स अ टाइम स्लॉट, नॉर्मली टैक्स का क्लासेस मॉर्निंग टाइम को करना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग में आपका माइंड रिलैक्स रहता है, कूल रहता है, आप ज्यादा बेटर रिटेंशन कर पाएंगे। रिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 to 3 टॉपिक जो मैंने ऊपर शेड्यूल में दिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप टॉपिक भूल जाओगे। टैक्स इज अ गजनी सब्जेक्ट, अगर आप ठीक से रिवाइज नहीं करेंगे बीच बीच में, आप एक टाइम के बाद टैक्स भूल जाएंगे। मैंने आपके फोल्डर में प्रैक्टिस सेशंस दे के रखा है, ऑल द टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके ऐप में सारे प्रैक्टिस सेशंस है, सारे टॉपिक्स के सारे प्रैक्टिस सेशंस को आपको मेरे सेवियर बुक से प्रैक्टिस करने, सेवियर बुक को भी मैंने ऐप में दे के रखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस डू नॉट स्किप द प्रैक्टिस सेशंस, बीच बीच में ही प्रैक्टिस सेशंस देखते रहिएगा। चैप्टर वाइज रिवीजन प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, और मॉक टेस्ट जो आपको दिया गया उसका सेपरेट फोल्डर रहेगा, वो भी आपको चैप्टर्स के साथ साथ कंप्लीट करना है टू गेन द कॉन्फिडेंस। ये नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन होता है, शुड आई स्टार्ट आईडीटी फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग डीटी? आईडीटी कंपैरेटिवली इजियर है, डीटी चैलेंजिंग है, सिलेबस वास्ट है। यू कैन स्टार्ट आईडीटी फर्स्ट, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद थ्योरी चैप्टर्स फर्स्ट, क्योंकि आईडीटी थ्योरी है, अगर आप थ्योरी पहले कवर कर सकते हो उतना आपके अंदर है कैपेबिलिटी, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर ऑन फिर डीटी जब स्टार्ट करोगे तो इतना इजी टॉपिक्स नहीं देखने को मिलेगा, बट प्रैक्टिकल है डायरेक्ट टैक्स। आईडीटी थ्योरी है, इजी है, बट डीटी प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेंथी है। यू कैन स्टार्ट डीटी फर्स्ट टू कंप्लीट द वास्ट पोर्शन फर्स्ट। अब कोई स्टूडेंट ऐसा सोचते नहीं सर हमको बड़ा वाला पार्ट पहले खत्म कर लेना, इजी पार्ट हम लास्ट के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप डीटी पहले करो और बाद में आईडीटी कवर करना। लेकिन इजी पहले कवर करना है, 60 मार्क नंबर उठा लेना, पहले सारा कवर कर लेना आईडीटी, तो 60 पहले कवर कर लो, बाद में जो टाइम बचेगा उसको फटाफट डीटी में लगा देना। डीटी में पॉसिबली अगर आप 5-6 चैप्टर कवर करके भी जाओगे, आप डीटी आराम से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप अलग से आराम से कवर कर पाओगे। सर हमारा पोस्ट फिनिशिंग सिलेबस टारगेट्स क्या रहेगा? सर मैराथन्स हम पूरा कवर कराएंगे क्लास में, पूरा एग्जॉस्टिव मैराथन्स होगा। एमसीक्यू के मैराथन्स अलग होंगे जो 30 मार्क्स सिक्योर करने के लिए इजी रहेगा। सुपर 50 सेशंस अलग होंगे। फुल मॉक टेस्ट आप लोग का एग्जाम का लिया जाएगा, जो कि पूरे सीएमए एक्सक्लूसिव एग्जाम्स के हिसाब से रहेगा। सर एवरी वीक हम थर्सडे हम स्टार्ट करेंगे आपका लाइव हैंड लोडिंग सेशंस, ठीक है। हमारा लाइव हैंड लोडिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में, जो कि आपके लिए हम एवरी थर्सडे लेकर आएंगे। तो एवरी थर्सडे हमारा लाइव हैंड लोडिंग सेशन होगा, और ये जो लाइव हैंड लोडिंग सेशन होगा ये ऐप पर भी हो सकता है और ये हमारा मीट सेशन में भी हो सकता है, जिसका डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेजते रहेंगे। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, एक निकुंज गोयनका टैक्स अपडेट्स बोल के हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हमने आपको क्लासेस परचेज करने के तुरंत बाद दे दिया था, नहीं तो आप जनरल सर्च करेंगे तो हो जाएगा। और आपको हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड करेंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप सीएमए कोर्स में हो, सीएमए फाइनल तक रह के रहना, क्योंकि हम बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ डालते रहते हैं। ये था मेरा प्लानर, जिसको मैंने समझा दिया आपको कि आपको कैसे कैसे क्लासेस कवर करनी है प्रोग्रेसिवली टाइम लिमिट में दिसंबर 26 में। अगेन मैं एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं दिसंबर 26 में, मेरे को नहीं लगता मैं 4 पेपर दे पाऊंगा, मेरे को नहीं लग रहा मेरा प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग है, तो प्लीज डायरेक्ट टैक्स आईडीटी का क्लास आप ले सकते हो, डीटी का क्लास मत लीजिएगा। हमारा आईटी एक्ट 2025 का जो हिसाब से क्लास होगा वो हम 24 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर लेना है तो डीटी का वो वाला बैच लीजिएगा जो हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज डू नॉट मिसगाइड योरसेल्फ, ऐसा मत करना कि क्लास ले ली और बाद में पढ़ाई नहीं। दिसंबर 26 तभी पढ़ना है जब आपने क्लास बढ़िया से कंप्लीट किया है, और आप कर सकते हो, आपने सोचा आप टारगेट लेके चलना कि मैं कर पाऊंगा, तभी आप दिसंबर 26 में जाओ, वरना मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा जून 27 में दो।
आईडीटी पहले स्टार्ट कर सकते हो अगर ऐसा करना है कि आईडीटी तुमको 60 मार्क्स, क्योंकि देखो आईडीटी में आप 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, बाकी का जो 40 मार्क्स है वो डीटी से उठा सकते हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सर 60 में आईडीटी में सिक्योर करना चाहता हूँ, डीटी में मैं 2-3-4 चैप्टर कर लूंगा जिससे मेरा कम से कम मैं एग्जामिशन स्कोर पाऊंगा, ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। ऑल्दो आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि फाइनल में डीटी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटर में ही अगर आपका बेस वीक है तो फाइनल में आपका बेस वीक रह जाएगा। नेवरथलेस फाइनल में तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 25 है, आपको वापस से सब कुछ नया पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बार ऐसा लग रहा है कि नहीं माई इंटरमीडिएट टॉपिक हैज टू बी द बेस्ट, तो आप वैसा भी कर सकते हो कि मैं उस तरीके से मैनेज करूं। ये था मेरा कंप्लीट रोड मैप वीडियो। आपको मैं आशा करता हूं कि जो पीडीएफ मैंने बनाया सब कुछ मिलाकर ये आपको हेल्पफुल रहेगा, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से रेगुलर सेशंस में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।